So, welcome to the students. This is another lecture of notches and wear. And today we will try to understand the concept of the ventilations of the wear. वेंटिलेशन ऑफ द वेयर्स क्या है, इसके कंसेप्ट के बारे में टुडे वी विल डिस्कस. हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज द वेंटिलेशन ऑफ वेयर. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दिस. हम इसे अंडरस्टैंड करें, राइट. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द वेंटिलेशन ऑफ वेयर एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट on the wear or notch, why it is so important. So all these things that will come in my discussion, that you will understand the importance of the ventilation of wear. You understand? So you can say that in case of the suppressed wear, mostly and commonly we can say that discharge over the wear or notch that is made by the rectangular wear, right? So here I am taking the case of the suppressed wear. तो suppressed wear जो आपका है, suppressed wear. So as you have already studied this thing, that what is the suppressed wear, that in case of the suppressed wear you can say that length of the crest that is equal to the width of the channel. You understand? So length of the crest, this you already know, length of crest, this is equal to the width of channel. जो क्रस्ट की लेंथ है वो क्या है, चैनल के विड्थ के बराबर होगी. सो आई एम टेकिंग द केस ऑफ द suppressed wear. नाउ यू अंडरस्टैंड दिस, राइट. सो इन केस ऑफ द suppressed wear यू कैन से क्या होगा, जो लेंथ है आपकी क्रस्ट की चैनल के विड्थ के बराबर है, इसे अंडरस्टैंड करें. सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस दैट द नैप विच emerges फ्रॉम द वेयर, राइट, जो नैप हमारा वेयर से emerge करेगा, इन केस ऑफ द suppressed wear यू कैन से दैट नैप जो emerge करेगा, emerging nap that touches the side wall of the wear. You understand? तो एक ये पॉइंट है. दूसरा आप लिख सकते हैं ये इसमें दैट नैप, emerging nap from the wear, emerging nap from the wear touches the side walls of channel, right. जो नैप इस केस में, सुप्रेस्ड वेयर के केस में, जो नैप आपका इमर्ज करेगा कहां से, वेयर से. अगर आपका सुप्रेस्ड वेयर है जिस केस में लेंथ ऑफ द क्रेस्ट दिस इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द चैनल, उस केस में क्या होगा कि जो वेयर का नैप वहां से वेयर से इमर्ज करेगा, वो नैप जो है, जो साइड वॉल्स होंगी चैनल्स की, उसको टच करे. यू अंडरस्टैंड? तो ड्यू टू दिस, इसके कारण क्या होगा, when it touches the side wall of the channels, due to this what happens that the air is trapped so emerging nap from the wear touching the side of the walls, right.
सो इससे क्या होगा, फर्स्ट वी विल ड्रा द एक्चुअली डायग्राम, पहले हम इसकी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ये किस तरीके से होगा, इसमें देखिए ये फर्स्ट ये सपोज ये आपका वेयर है, so this is wear, right? So this is wear like this. तो ये आपका अपस्ट्रीम साइड है, the water is collecting towards this upstream side, right? तो जहां से right, so this is your upstream, right, and this is your downstream. ये क्या है, ये downstream side है, right? This is your nap, right, and ये आपका wear है, you understand? आप इसको समझते हैं, right? So it is just like this, that the water that is in the upstream side, as you understand and know the significance of the wear is कि क्या होगा, wear जहां पे है तो first the water will collect here, it will start storing here, and after that इसके ऊपर से ये क्रॉस करके इस तरीके से ये नीचे जाएगा, you understand? तो ये आपका जो नैप है, दिस इज कॉल्ड द नैप इन द डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर आपका क्या होगा, नैप होगा, राइट? सो इमर्जिंग नैप, देखो ये आप नाउ वी आर जस्ट अगेन आई विल जस्ट डिस्कस इट, दैट द suppressed wear is what, length of the crest, this is equal to the width of the channel, you understand that, you know, and I'm taking the case of the suppressed wear, try to understand. So what happens that in case you can say, in case of the suppressed wear, you can say that the emerging napping, this nap is emerging from here, this emerging napping from the wear touches the side wall of the channel, right? जो चैनल की साइड वॉल्स हैं उसके साथ टच करेगा in case of suppressed wear, right? So on account of this what happens, जब ये टच करेगा तो ऑन क्या होगा, ऑन अकाउंट ऑफ दिस, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए आप। The air is trapped. Air is trapped between the space. Air is trapped in the space between the falling nappy and wear. This is your falling nappy. ये नैप जो है ये नीचे को गिर रहा है, तो क्या होगा कि एयर जो है इसके और इसके बीच में क्या होगा, एयर इज ट्रैप्ड. So air will trapped between the falling nappy तो ये लिख लीजिए आप, दैट एयर क्या होगा, एयर इस केस में एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द फॉलिंग, इस केस में जो एयर है ट्रैप होगा कहां पे, बिटवीन द फॉलिंग नैपी एंड साइड्स, वॉल्स
of channel, right, where and bottom of the channel. You understand this? क्या होगा, एयर जो है वो ट्रैप, इनके बीच में ट्रैप होगी, किसके बीच में? एयर इज ट्रैप बिटवीन द फॉलिंग नैपी एंड द साइड वॉल ऑफ द चैनल, वेयर एंड बॉटम ऑफ द चैनल. यू अंडरस्टैंड? अब ये जो एयर ट्रैप होगी, दैट एयर इज बीइंग कैरिड अवे बाय द फ्लोइंग फ्लूइड, क्योंकि पानी आपका क्या है, फ्लो कर रहा है यहां पे. यू अंडरस्टैंड? सो दिस एयर which is being trapped, that is carried away by the flowing fluid. तो क्या होगा? Thus reducing the pressure between the falling nappy. You understand? Thus reducing the pressure in the space below nap. You understand? तो क्या होगा? एयर जो फ्लोइंग वाटर है उसके साथ एयर को क्या करेगा, फ्लोइंग वाटर एयर को कैरी आउट करेगा, और जो प्रेशर होगा नैप का के बीच में जो स्पेस होगा, राइट, उसका प्रेशर आपका क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, बिकॉज द एयर इज बीइंग, राइट, सो द प्रेशर ड्रॉप between the space below falling nappy. You understand? Falling nap. तो एयर का प्रेशर रिड्यूस होगा, तो जो एयर का प्रेशर रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस होते होते उसका इतना प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा कि उसका प्रेशर दैट बिकम्स लेस देन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यू अंडरस्टैंड? नेगेटिव प्रेशर आप कह सकते हैं, उसका नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा या वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड? वैक्यूम प्रेशर कहां पे क्रिएट होगा? जो नैप के अंडर, नैप के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में जो एयर का प्रेशर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड? जब ये एयर का प्रेशर रिड्यूस होगा, सो देन व्हाट विल हैपन? इट विल ड्रॉ, ये जो नैप इस तरीके से है आपका, सो इट विल ड्रॉ द नैप टुवर्ड्स द बियर. यू अंडरस्टैंड? तो नैप जो है वो बियर की तरफ सो इट विल ड्रॉ द लोअर नैप. जी आपका लोअर नैप है, दिस इज आपका, दिस इज योर लोअर नैप, राइट, दिस इज योर लोअर नैप. सो व्हाट हैपन्स, जब इसके बीच में प्रेशर इसका कम होगा, वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो ये जो लोअर नैप है, डाउन स्ट्रीम साइड वाला लोअर नैप जो होगा, वो वियर की साइड की तरफ क्या होगा? इट विल ड्रॉ द लोअर नैप टुवर्ड्स द साइड ऑफ द वियर. यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका एक ये इफेक्ट इसका हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड? तो ये जो नैप आपका प्रोड्यूस होगा, इस नैप को हम कहते हैं कौन सा? डिप्रेस्ड वियर. इस नैप को क्या बोलते हैं हम? दैट इज कॉल्ड द डिप्रेस्ड वियर. यू अंडरस्टैंड? सो इसको लिख लीजिए, इसको मैं आपको लिख के दे देता हूं. सो सच टाइप ऑफ नैप इज कॉल्ड द डिप्रेस्ड नैप. यू अंडरस्टैंड? तो इस नैप को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द डिप्रेस्ड नैप. यू अंडरस्टैंड? आया, समझ आ गई आपको? जैसे मैंने आपको पहले बताया था दैट आई एम टेकिंग द केस ऑफ द सप्रेस्ड वेयर, एंड इन केस ऑफ द सप्रेस्ड वेयर यू नो दैट द लेंथ ऑफ द क्रेस्ट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द वेयर. यू अंडरस्टैंड? तो इस केस में क्या होगा, जो नैप आपका मर्ज होगा, राइट, दैट विल टचेस द साइड वॉल्स ऑफ द चैनल. तो साइड वॉल्स, चैनल की साइड वॉल्स से टच करने से क्या होगा? ऑन अकाउंट ऑफ दिस व्हाट हैपेंस दैट द एयर इज बीइंग ट्रैप्ड
between the nap and the side wall of the channel where bottom of the channel, वो जो एयर आपका वहां पे ट्रैप होगा, यू अंडरस्टैंड दिस, जो आपका एयर उनके बीच में जो ट्रैप होगा फॉलिंग नैपी के बीच में और साइड वॉल ऑफ द चैनल्स के बीच में, वेयर जब बॉटम ऑफ द चैनल के बीच में, दैट एयर इज बीइंग, क्या होगा, driven by this flowing water, you understand, or you can say that air, वो जो आपका एयर वहां पे पैदा होगा, that air is being carried away by the flowing water, you understand. तो वो जो एयर इसके बीच में पैदा होगा, that डेवलप होगा, वो जो एयर है, जो आपका फ्लोइंग वाटर है, उससे एयर जो है बाहर निकलेगी, यू अंडरस्टैंड. तो एयर जब जहां से पानी के साथ बाहर चली जाएगी तो व्हाट हैपेंस देयर, दैट द प्रेशर, इसके बीच में जो प्रेशर होगा, मींस किसके बीच में, फॉलिंग नैपी एंड साइड ऑफ द चैनल, जो आपका प्रेशर होगा वो आपका क्या होगा, प्रेशर जो आपका देयर बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर इन द स्पेस बिलो नैपी. तो क्या होगा, वो जो प्रेशर होगा नैप के नीचे जो आपका स्पेस है, इसके बीच में जो आपका प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, राइट, कम हो जाएगा. तो क्या होगा, इस तरीके से उसका प्रेशर जो है कम होता जाएगा और एक ऐसी स्टेज आएगी जब उसका प्रेशर जो होगा वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, लेस होगा, कम हो जाएगा. यू कैन से दैट प्रेशर इज हैविंग द नेगेटिव प्रेशर होगा, वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होगा. तो उस केस में क्या होगा, जब आपका नेगेटिव प्रेशर, जब वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होगा, तो वो क्या होगा, ये जो आपका नैप है, लोअर नैप, यू कैन से दैट विल, जो आपका लोअर नैप है, दैट विल मूव एंड सो जो आपका लोअर नैप होगा, राइट, लोअर नैप, इस केस में जब आपका प्रेशर कम होगा तो लोअर नैप आपका ड्रा मोर एंड मोर, ड्रास मोर एंड मोर टूवर्ड्स more and more towards the downstream surface of the weir, towards downstream surface of the weir, surface of weir. Understand? समझ आ गया, ये चीज समझ आ गई कि जो आपका लोअर नैप होगा वो ज्यादा से ज्यादा इस साइड के ऊपर डाउनस्ट्रीम सरफेस, जो आपका वेयर है, ये आपका डाउनस्ट्रीम सरफेस ऑफ द वेयर है, इसकी साइड की तरफ ये लोअर नैप जो है इसका इस साइड के ऊपर ड्रा करना शुरू हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड. तो जो ऐसा केस होगा, इस केस में जो आपको वेयर मिलेगा, जो ये वाला केस होगा, इसको हम क्या कहते हैं, डिप्रेस्ड नैप, यू अंडरस्टैंड. ऐसे केस में जो है, सो सच ए नैप इज नोन एज डिप्रेस्ड नैप. तो ऐसा जो नैप होगा इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेस्ड नैप. एंड इन केस ऑफ द डिप्रेस्ड नैप, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, इट विल ड्रा मोर क्वांटिटी ऑफ द वाटर, यू अंडरस्टैंड. इससे क्या होगा, इट विल ड्रा मोर क्वांटिटी ऑफ द वाटर. एंड इफ यू वांट टू मेयर द एक्चुअल डिस्चार्ज of the rectangular weir, if the ventilation is not being done, if the weir, you can say, if the nap is the depressed nap, so you cannot measure the actual
वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि इस केस में हमें जो डिस्चार्ज मिलेगा, हमें एक्चुअल डिस्चार्ज से 6 to 7% जो डिस्चार्ज होगा इस केस में आपका ज्यादा होगा। यू अंडरस्टैंड? ये हो गया आपका डिप्रेस्ड नैप। क्योंकि ये वेंटिलेशन की बात है तो वेंटिलेशन का आपको बताएंगे। तो डिप्रेस्ड नैप के केस में आप कह सकते हैं कि वी विल नॉट गेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज। यू अंडरस्टैंड? तो अगर हमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज लेना है तो हमारा जो डिप्रेस्ड नैप है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि इस केस में हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगी। नाउ यू कम टू दिस। ये हो गया डिप्रेस्ड नैप के बारे में। अगर इसके बाद फर्दर, इफ यू विल से फर्दर व्हाट हैपेंस, क्योंकि हवा, पानी जो है, द वाटर इज द एयर इज बीइंग कैरिड अवे बाय द वाटर। फर्दर जो उसमें हवा होगी वो तो पानी के साथ बाहर निकल रही है। यू अंडरस्टैंड? सो वन स्टेज विल कम when there is no air. You can say when there is no air between the space in the falling nappy. You understand? जो आपका falling nappy है उसके स्पेस और जो आपका वेयर है या साइड वॉल्स है उसके बीच में आपको there is no air, you can say. जब आपका एयर वहां पे नहीं होगा तो इसका मतलब है कि उसका प्रेशर जो है वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। यू अंडरस्टैंड? वहां पे एयर नहीं है तो आपका क्या है, प्रेशर, जहां पे बहुत ज्यादा कम होगा। यू अंडरस्टैंड? जब हेयर इन है तो प्रेशर नहीं होगा, जब बहुत ज्यादा नेग्लेजिबल होगा, कम होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका नैप है, पहले केस में अपना डिप्रेस्ड में देखा था कि जो आपका लोअर नैप है दैट विल मूव टुवर्ड्स दिस डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द वेयर। यू अंडरस्टैंड? लेकिन सेकंड केस में क्या होगा कि जो आपका ये नैप है दैट विल क्लिंग और एडियर टू द वेयर। यू अंडरस्टैंड? बॉल ऑफ द वेयर दैट विल सो डोंट स्टीम जो सरफेस है इसका इसके साथ अटैच हो जाएगा। इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसकी अगर हम ड्रा कर लेते हैं डायग्राम तो इट इज लाइक दिस। तो ये आपका सपोज दिस इज योर बियर, राइट? ये अपस्ट्रीम साइड के ऊपर है, दिस इज अपस्ट्रीम साइड, राइट? तो इस तरीके से होगा ये। और जो ये जो आपका लोअर नैप जहां से चलेगा दैट विल राइट। तो जहां पे आपने देखा कि ये जो आपका लोअर नैप है दैट विल क्लिंग विद द डाउनस्ट्रीम सरफेस ऑफ द वेयर। ठीक है ना? जब ये इस तरीके से इसके साथ क्लिंग करेगा, जब इसके बीच में एयर, आप कह सकते हैं द एयर बिटवीन द लोअर नैप, स्पेस ऑफ द लोअर नैप, व्हेन देयर इज नो एयर, इन दिस केस जो हमें ये नैप मिलेगा तो आप कह सकते हैं ये आपका नैप, इसको हम बोलते हैं एडियर नैप, राइट? और क्लिंगिंग नैप। यू अंडरस्टैंड? इसको हम क्या बोलते हैं, एडियर नैप और क्लिंगिंग नैप। इन दिस केस एडियर नैप और clinging nap. You understand?
जी आपको किस केस में मिलेगा? जब टोटल एयर विच इज इन द स्पेस below the nap that is being carried away by the flowing water. So in this case you will get the adhere nap or the clinging nap. ऊपर जो आपको मिला था that is the depressed nap. You understand? अब इस केस में जो आपका क्या होगा, जो आपका that will draw more water. इस केस में भी पानी जो था क्या हुआ था, इसने ज्यादा ड्रा किया था, जो उसका एक्चुअल वैल्यू है डिस्चार्ज की उससे 6 to 7% द वाटर इट ड्रॉस मोर. बट इस केस में यू कैन से इट विल ड्रा मोर एंड मोर वाटर एज कंपेयर टू द डिप्रेस्ड और द सुप्रेस्ड नैप यू कैन से. और इस केस में 25 to 30% द वाटर इट विल ड्रा मोर. यू अंडरस्टैंड? So you can say that if we will consider इस केस में जो आपका डिप्रेस्ड नैप है या इस केस में जो आपका एडेयर या क्लिंगिंग नैप है, इस केस में इफ वी वांट टू फाइंड द डिस्चार्ज, राइट, अगर हमें डिस्चार्ज को कंप्यूट करना है, फाइंड करना है, एंड इफ द कंडीशंस आर लाइक दिस, इफ द कंडीशंस ऑफ द नैप इज लाइक दिस, so it means that we cannot calculate we cannot compute the actual value of the discharge. So then what we have to do? अब हमें क्या करना है, क्या करेंगे so that we will get the actual value of the discharge. You understand? So then in this case the term ventilation, जो हमने जो टॉपिक का नाम है ventilation ऑफ वेयर्स, तो इस टर्म्स में हमें, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, वेंटिलेशन ऑफ द वेयर करना पड़ेगा. यू अंडरस्टैंड? क्योंकि जो हमारी जितने भी हमने एम्पिरिकल फार्मूलेस हैं, जितना भी एनालिटिकल फार्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्चार्ज इन केस ऑफ द रेक्टेंगुलर वेयर, because rectangular wear are commonly used, so I am taking the case of the rectangular wear. तो जितने भी आपके एनालिटिकल आपके फार्मूले, वो सारे फार्मूले जो वेस्ट हैं वो किसके ऊपर वेस्ट है? व्हेन वी आर हैविंग ए फ्री नैप. कौन सी assumption के ऊपर है? कि व्हेन वी आर हैविंग ए फ्री नैप दैट शुड बी फ्री. डिप्रेस्ड नैप के ऊपर नहीं है बिकॉज इट विल ड्रा मोर वाटर. एडियर नैप की बात करें तो इसमें तो 25 to 30% जो पानी है दैट विल ड्रा मोर टू द एक्चुअल डिस्चार्ज. यू अंडरस्टैंड? तो जितने भी हमारे फार्मूले हैं टू कंप्यूट द डिस्चार्ज ऑफ द वाटर बाय द रेक्टेंगुलर वेयर और नॉच, वो हम यूज करते हैं ऑन दिस अजम्पशन दैट आवर नैप दैट शुड बी फ्री, or you can say free nap. अब free nap क्या है? Free nap means that pressure between the space of the falling nap and the, you can say, weir or side walls of the channels, that should be the atmospheric pressure. वो क्या होना चाहिए? उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए. बट इस केस, ये जो दोनों केसेस वी हैव टेकन हियर, वी हैव सीन दैट अगर डिप्रेस्ड वेयर की बात करें तो इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा? कम होगा. नेगेटिव प्रेशर वैल्यू होगी, वैक्यूम प्रेशर होगा. क्यों होगा? क्योंकि जो आपका एयर है विच इज बीइंग ट्रैप्ड बिटवीन द फॉलिंग नेवी and downstream side of the weir, that is being carried away, or you can say that air is being carried away by the flowing water. You understand? And thus it reduces the pressure between the space of the falling nap and this weir. And ultimately what happens?
pressure reduces that much that it becomes a negative pressure, or you can say वैक्यूम प्रेशर। और उस केस में जो आपकी फॉर्मेशन होगी नैप की, वो कौन सी होगी? डिप्रेस्ड नैप होगी, बिकॉज इट विल ड्रा मोर एंड मोर टुवर्ड्स द साइड ऑफ द डाउन स्ट्रीम। इस तरीके से जो आपका आइडियल नैप है उसमें क्या है, जिस तरीके से ये फर्दर आपका द एयर इज बीइंग कैरिड अवे बाय द वाटर and the time will come, or you can say that at some moment what happens that there is no air left between the space of the falling nap and wear, तो उसके बीच में कोई एयर ही नहीं होगा। so what happens, क्या होगा? ये नैप इसके साथ क्लिंग करेगा जो डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द वेयर है। यू अंडरस्टैंड दिस? और जो एक्चुअल वाटर है हमारा, दैट इज मोर देन 25 to 30% मोर देन द डिस्चार्ज, ये ज्यादा वाटर को ड्रा करेगा। तो ऐसे केसेस में तो हम डिस्चार्ज को मेजर नहीं कर सकते। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेंटिलेशन। सो वेंटिलेशन की ये इंपॉर्टेंस है कि हमें क्या करना पड़ेगा? वियर्स की वेंटिलेशन करने पड़ेगी, सो दैट हमें external air we have to provide between the space of the nap and downstream surface of the weir। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपकी चैनल्स की जो साइड वॉल्स हैं बिलो दिस नैप, जहां पे जो फॉलिंग नैप चैनल में गिरेगा, उसकी जो साइड वॉल्स हैं उसके बीच में हमें वी हैव टू डेवलप द होल्स, हमें होल्स जो है डेवलप करने पड़ेंगे। यू अंडरस्टैंड? और होल का क्या फंक्शन होगा? थ्रू दिस होल्स द एक्सटर्नल एयर इज बीइंग टेकन, और एक्सटर्नल एयर जब हम लेंगे दैट विल रिकूप द एयर विच इज बीइंग कैरिड अवे बाय द वाटर, क्योंकि जो ऑलरेडी इसके बीच में एयर थी वो तो पानी से बाहर निकल गई। यू अंडरस्टैंड? तो हम एक्सटर्नल एयर को विद द हेल्प ऑफ होल्स हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल एयर्स को हम जहां पे सप्लाई करेंगे, बाहर से एक्सटर्नल एयर आएगी और वो क्या करेगी? जो इसके बीच का प्रेशर है बिटवीन द फॉलिंग नैप एंड द डाउनस्ट्रीम साइड, क्या होगा? प्रेशर आपका मेंटेन करेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरीके से कह सकते हैं, इस तरीके से ये आपके इधर जो साइड वॉल्स हैं चैनल्स की, इस तरीके से आपके ये होल्स होंगे। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आपके साइड वॉल्स के बीच में होल्स होंगे एंड दैट विल प्रोवाइड द एक्सटर्नल तो अगर आपने लिखना है ये पॉइंट तो लिख लीजिए। just downstream side of the weir, downstream side of the weir downstream side of the weir holes are made in the side walls of the channel। तो क्या करेंगे हम? ये मैंने जैसे आपको बताया, होल्स आर मेड इन द साइड wall of, right? Holes are made in the side wall of the channel and the air is being recouped. Which air? Air is being recouped, that is carried away by the flowing water. तो जहां इसके बीच में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करेगा
और उस केस में जो हमें नैप मिलेगा, दैट नैप इज कॉल्ड द फ्री नैप। यू अंडरस्टैंड? आपको समझ आया कि फ्री नैप किस तरीके से मिलेगा? बिकॉज हमें होल्स जो है प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो आपका डाउनस्ट्रीम साइट है, राइट? वियर का जो डाउनस्ट्रीम साइट है, जो उस साइट के ऊपर जो हमारी चैनल है, उसके साइड वॉल्स के ऊपर हम क्या करेंगे? होल्स फॉर्म करेंगे, और होल्स के थ्रू एयर, एक्सटर्नल एयर, दैट विल कम इनसाइड and that will recoup the air which is being carried away by the water. So in this case, the atmospheric pressure is being developed between the space of the falling nappy and the weir. और वो जो नैप हमें मिलेगा वो फ्री नैप मिलेगा, और फ्री नैप के केस में हम जब डिस्चार्ज को कंप्यूट करेंगे, राइट? इन दैट केस अगर हम डिस्चार्ज को जब हम कंप्यूट करेंगे, दैट विल गिव द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज। यू अंडरस्टैंड? सो दैट विल गिव द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेंटिलेशन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेंटिलेशन इस टॉपिक में। और ये जो वियर्स आपको वेंटिलेशन, जिन वियर में आपको वेंटिलेशन मिलेगा, उन वियर्स को हम वेंटिलेटेड वियर्स भी कहते हैं। यू अंडरस्टैंड? सो दोज वियर्स आर कॉल्ड द वेंटिलेटेड वियर्स। अब इसमें देख लीजिए, अगर आपका डिस्चार्ज आपका 100 लीटर पर सेकेंड है, इन दैट केस यू ओनली रिक्वायर 2 होल्स ऑफ 25 mm डायामीटर। इस केस में आपको 2 होल इज सफिशिएंट of the 25 mm diameter in case of the discharge। अगर आपका डिस्चार्ज आपका है 100 लीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना डिस्चार्ज? 100 लीटर है। इन दैट केस वी रिक्वायर 2 वेंटिलेशन होल्स इन द वियर। वियर को वेंटिलेशन करने के लिए कितने होल चाहिए? 2 होल चाहिए, और जिसका डायमीटर होगा 25 mm डायमीटर, राइट? और अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं, इसको लिख लेते हैं। तो कुछ जहां पे कंक्लूजन लिख लीजिए आप। तो फर्स्ट आप कर लीजिए, जनरली फ्री नैप is required for computing the discharge generally the free nap is required for computing the discharge in the rectangular, in the suppressed, लिख लो, in the suppressed, in the suppressed rectangular suppressed rectangular channel, right?
तो पहला तो ये आ गया, ठीक है। सो द क्रॉस सेक्शन of ventilated holes that should be equal to equal to 0.5% of L into Z1, राइट। क्या होगा? L into Z1। सपोज अगर ये तो Z1 आपका क्या होगा? Z1 होगा जी आपका डेप्थ ऑफ द वाटर डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर, राइट। Z1 is the depth of the water in the downstream side, right, to the top or to the crust of the weir, ठीक है ना। क्रस्ट से लेके जो डाउनस्ट्रीम साइड पानी का डेप्थ है, ये जो जहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द Z1। तो Z1 क्या है? Z1 आपका आ गया डेप्थ ऑफ द वाटर। तो Z1 क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर इन द downstream side from the crest of weir, you understand। तो Z1 आपका क्रस्ट से जो डाउनस्ट्रीम वाटर की डेप्थ है वहां से जो डिस्टेंस होगा दैट इज Z1 एंड L इज द लेंथ ऑफ द क्रस्ट। ये तो आपको मालूम ही है, यू अंडरस्टैंड। तो क्रॉस सेक्शन इसका आ गया। अगर तीसरा हम देखें, सो यू कैन से फॉर, अगर आपका डिस्चार्ज 100 लीटर for discharge 100 liter per second, only 2 holes are required, you understand। so discharge आपका 100 liter per second है, टू होल्स आर सफिशिएंट। इस केस में आपके 2 होल्स आर सफिशिएंट, राइट, ऑफ डायामीटर। डायामीटर कितना होगा उसका? 25 mm ऑफ ईच होल, यू अंडरस्टैंड। ये थर्ड पॉइंट हो गया फॉर डिस्चार्ज 100 लीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा, फोर्थ आप लिख लीजिए। फोर्थ लिख लीजिए,
discharge over the depressed nape, discharge over the beer, discharge over the beer with depressed nape, right? Discharge over the beer with the depressed nape draws 6 to 7%, 6 to 7% more than the actual discharge, right? तो एक्चुअल डिस्चार्ज से इसका क्या होगा? 6 to 7% मोर देन द एक्चुअल डिस्चार्ज, ऐसे लिख लो, दैट इज बीइंग obtained by the free nap wear. अगर हम फ्री नैप वियर से जो भी हम डिस्चार्ज मेजर करेंगे, इस केस में आपका डिस्चार्ज जो होगा वो क्या होगा? 6 to 7% मोर इन द डिप्रेस्ड नैप. तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिए आप, डिस्चार्ज ओवर द wear with discharge over the wear with anterior nap और क्लिंगिंग नैप, डियर नैप और क्लिंगिंग नैप कितना होगा? ड्रास 25 to 39% more than the discharge right compute by the free nap wear. You understand? So these are some conclusions which I have drawn through this. Now you can understand the importance of the ventilation. You understand how much important is the ventilation is in case of the wear. कितनी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है वेंटिलेशंस की वियर के केस में, क्योंकि हमें दैट शुड बी कंफर्म, वी मस्ट कंफर्म दिस थिंग दैट देयर मस्ट बी अ फ्री नैप when we will measure, when we will compute the discharge of the channel, you can say through this nap, through this wear or notch तो नहीं होगा, through the wear. तो उस केस में हमें we have to see that nap should be free nap. और फ्री नैप का आपको मैंने बता दिया कि फ्री नैप क्या होगा? जो स्पेस होगा नैप के बीच में से एंड डाउनवर्ड जो आपका वेयर का सरफेस है उसके बीच में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए. एंड इफ द प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक, then it means that we are not getting the
free, we are not getting the free, you can say this, free nap beer, we will get the depressed nap beer, or we will get the adhering or clinging nap beer. और उसका जो सबसे ड्रॉबैक जो मैंने आपको बताया वो क्या है कि if we have to compute the discharge, that will drop more water as compared to the actual discharge जो हमें मेयर करना है. तो उस केस में अगर हम डिस्चार्ज मेयर करेंगे तो वहां पे क्या होगा, हमारा एरर होगा. डिस्चार्ज, हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज हम मेयर नहीं कर पाएंगे. अगर आपकी डिप्रेस्ड वियर है तो उस केस में जो हमारा डिस्चार्ज होगा वो 6 to 7% मोर देन दैट ऑफ द एक्चुअल डिस्चार्ज. एंड इफ इट इज अ क्लिंगिंग वियर कब बनता है, व्हेन देयर इज नो एयर लेफ्ट बिटवीन दिस स्पेस नैप एंड द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द वियर. जब उसके बीच में बिल्कुल भी कोई हवा नहीं होगी, बिकॉज दैट एयर इज बीइंग कैरिड अवे बाय द फ्लोइंग वाटर, व्हेन there left no air there, so in that case we will get the clinging nap or the adhere nap. और उस केस में जो अगर आप if we will measure the discharge by keeping that condition, तो क्या होगा, हमारा डिस्चार्ज दैट इज 25% to 39% ज्यादा होगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो नैप है दैट शुड बी ए फ्री नैप. और फ्री नैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वेंटिलेशन ऑफ द वेयर्स करना पड़ेगा. वेंटिलेशन क्या करते हैं, हमारा जो डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर जो हमारा फॉलन नैपी है उसके नीचे जो स्पेस होगा, जो साइड वॉल ऑफ द चैनल्स है, वहां पे हम क्या कर देंगे, वहां पे हम होल्स जो है डेवलप करेंगे, होल फॉर्म करेंगे, होल बनाएंगे. होल से क्या होगा, हमारी जो एक्सटर्नल एयर है दैट विल कम इनसाइड एंड दैट विल रिकूप द प्रेशर. मींस जो हमें प्रेशर जो होगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनेगा. उस केस में वो जो प्रोसेस है आपका, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द वेंटिलेशन. और जो वियर जिनके केस में जो प्रोसेस करते हैं दैट इज द वेंटिलेशन ऑफ द वियर. एंड दैट यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस आल्सो. ये भी मैंने आपको बता दिया जहां पे कि जो आप होल्ड करेंगे, अगर पानी का आपका जो है आपका 100 लीटर पर सेकंड के हिसाब से, वाटर कितना 100 लीटर पर सेकंड जिसका आपने डिस्चार्ज मेयर करना है, पानी की जो क्वांटिटी है वो बताया है 100 लीटर पर सेकंड. इन दैट केस वी ओनली रिक्वायर 2 होल्स, राइट. ईच इज हैविंग द 25 mm डायामीटर. और अगर क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल की बात करें तो दैट शुड बी 0.5% इंटू L इंटू Z1. L is the length of the crust of the weir and Z1 that is the height or depth of the water from the crust of the weir. You understand? In the downstream side. तो ये आपका वेंटिलेशन ऑफ वेयर्स के बारे में था. आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. थेटिकल टॉपिक है, थ्योरी टॉपिक है, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. क्योंकि वियर्स तो हम पढ़ लेते हैं, सुप्रेस्ड वियर क्या है, ट्रायंगुलर वियर क्या है, उसकी डेरिवेशंस क्या है, बाकी चीजें क्या है, उसको हमने यूज कैसे करना है. बट यूज करने के लिए हमें ये जो वेंटिलेशन ऑफ द वियर है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. हमें वेंटिलेशन ऑफ वियर. अच्छा, अब इसमें देखिए कुछ इंपीरिकल फार्मूले हैं. देयर आर सम सर्टेन इंपीरिकल फार्मूलाज जो हमें ड्राइव किए थे बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट बाय टेकिंग द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो उन्हें रिजल्ट मिले उस रिजल्ट के बेसिस के ऊपर दे हैव गिवन द इंपीरिकल फार्मूलाज, राइट. तो उसमें भी कुछ इंपीरिकल फार्मूले हैं इसके, वो हम लिखते हैं. और उसमें देखिए, उसमें जो रिजल्ट हमें जो जितने भी मिले हैं वो हमें रिजल्ट मिले हैं जिस केस में हम फ्री नैप वियर यूज करेंगे. यू अंडरस्टैंड, हमने क्या किया था, फ्री नैप वियर यूज किया था, ना कि आपका डिप्रेस्ड नैप था, ना ही आपका क्लीनिंग नैप था. यू अंडरस्टैंड. तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो भी इंपेरिकल फार्मूला हम कुछ लिख लेते हैं यहां पे, राइट.
सो कुछ इंपेरिकल फार्मूले से लिखेंगे, यहां पे हेडिंग लिख लेते हैं हम, इंपेरिकल फार्मूला यूज्ड फॉर measuring the discharge in case of rectangular weir, राइट। तो वन बाय वन लिखते हैं हम। रेक्टेंगुलर वेयर इंपेरिकल फार्मूला देखिए, तो एज यू नो जनरली वी यूज द रेक्टेंगुलर वेयर फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्चार्ज, यू अंडरस्टैंड। हम रेक्टेंगुलर वेयर को जनरली यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्चार्ज, यू अंडरस्टैंड। तो आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर वेयर, इसको ऊपर ही हम ये सारे फार्मूले देंगे। रेक्टेंगुलर वेयर इज जनरली यूज्ड फॉर measuring the discharge of channel, you understand. Now the different investigators, what they have done, they conducted different type of the experiment by taking this on different type of the experiments on the rectangular weir, right, by using the rectangular weir for measuring the discharge। तो different investigators ने experiments किए और experiment करने के बाद they have obtained the results, और उन results के बाद they have given the formula। तो अगर मैं सुप्रेस्ड वेयर की बात करूं, यू अंडरस्टैंड, सुप्रेस्ड वेयर के केस में ले लीजिए, आज यू कैन से तो डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर्स हैव कंडक्टेड द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स दे हैव गिवन द फार्मूला, यू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं कहता हूं कि नैरो क्रेस्टेड वेयर, नैरो क्रेस्टेड वेयर, नैरो क्रेस्टेड वेयर के केस में तो इसी तरीके से फ्रांसिस एक साइंटिस्ट था, फ्रांसिस जो आपका था एक साइंटिस्ट था। ही हैज कंडक्टेड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट और जनरली उसने नैरो क्रेस्टेड वेयर और प्लेट वेयर, यू अंडरस्टैंड, राइट। तो जनरली so he has given Francis ne he has given the formula for discharge of narrow, right, narrow crested weir or sharp as plate weir, right। narrow crested weir and
are without and contraction, दोनों के ऊपर दिया था and sharp edge plate wear. You understand? तो फ्रांसिस ने क्या किया कि he has done the different type of experiment, or on the basis of that experiment he has given the formula of the discharge for this narrow crusted wear or plate wear के ऊपर जो उसने फार्मूला दिया था. You understand? तो उसमें जब you can say by conducting the different experiment, उसने length of crust जो थी, length of the crust, generally he has taken the length of the crust, that is 1.07 meter to 5.1 meter. तो इसके बीच में उसने कहा था जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए तो लेंथ ऑफ द क्रस्ट दैट शुड बी दिस मच, एंड जनरली जो उसने वैल्यू दी थी, जनरली जो वैल्यू थी जनरली वैल्यू जो दी थी वो हम लेते हैं 3.09 मीटर, राइट? 3.09 मीटर generally the value which he has given. (3.05) राइट? इसी तरीके से जो हेड था, हेड उसने कहा कि हेड जो है इस केस में कितना होना चाहिए, जो हेड की वैल्यू है, that he has taken that 0.18 meter to 0.49 meter. So head that is 0.18 meter to 0.49 meter. So while conducting the different experiment, what he has given the value, okay, length of the crust that should be between this 1.07 meter and maximum that should be up to this 5.19 meter, but general जो वैल्यू हम इसकी ले सकते हैं that is 3.05 मीटर. और जो हेड आपका होगा, हेड जो इसमें आपकी नैरो क्रस्टेड वेयर है, जो हेड की वैल्यू है that should be between this 0.18 meter to 0.49 meter, because this value he has taken by conducting the different type of the experiment, right? तो इसलिए जो ये फार्मूला जो दिया था that is called the empirical formula. You understand? तो इसमें जो उसने ये तो हो गई इसकी वैल्यू. अब फ्रांसिस ने जो फार्मूला दिया था, जो हम जनरली प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो फ्रांसिस proposed the following formula for computing the discharge over rectangular wear, for computing the discharge over rectangular. इसको आप याद रखिएगा. ये था आपका Q is equal to 1.84, right? L into H.
एल, अगर मैं पहले इसका एंड कंट्रैक्शन में ले लूं तो ये आ जाएगा एल माइनस 0.1 एच 0.1 and 0.1 NH into H for end contraction rectangular where when ये कब होगा, when the velocity of approach is not considered, जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम कंसिडर नहीं करेंगे। देखिए जो इसका जनरल फार्मूला है वो हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू 2y3 CD, Q इज इक्वल टू 2y3 CD इंटू L इंटू रूट 2G अंडर रूट ऑफ H3/2। यही फार्मूला हमारा रेक्टेंगुलर वियर का, राइट। दिस इज द फार्मूला फॉर द रेक्टेंगुलर वियर। एंड इफ वी विल कंपेयर, राइट, ये हो गया। एंड इफ वी विल कंपेयर दिस, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो आप इसमें देखिएगा ये आपका जो है दिस वैल्यू 2y3 इंटू CD इंटू रूट 2G, दिस इज टेकन एज 1.84। ये किसके बराबर लिया है, 1.84। और इसमें जो CD की वैल्यू ली है, द वैल्यू ऑफ CD दैट शुड बी इक्वल टू 0.623, राइट। जो इसमें CD की वैल्यू लिया है, ये याद रखना है, ये हमने लिया है 0.623। यू अंडरस्टैंड। ये हो गया एक इंपीरिकल फार्मूला, दिस इज वन इंपीरिकल फार्मूला। ये था एंड कंट्रैक्शन वियर का, जब हमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कंसिडर नहीं किया था, व्हेन वी हैव नॉट कंसिडर द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट, उस वक्त ये फार्मूला था। एंड सेकंड इसमें लिख लीजिए, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड लिख लीजिए, व्हेन वी हैव कंसिडर द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, उस वक्त देखिए क्यू क्या आएगा, इज इक्वल टू 1.84 L minus 0.1 and H1, right, into H1 3/2 minus HA 3/2, H1 3/2 minus HA 3/2, small HA 3/2, राइट। जे किस केस में हम लेंगे, जे लेंगे व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज कंसिडर, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कंसिडर करेंगे उस केस में हम ये फार्मूला लेंगे, ये याद रखो, राइट। यू अंडरस्टैंड। अच्छा H1 क्या है,
H1 this is equal to H प्लस HA। ये याद रखना है, H1 किसके बराबर है? H प्लस HA। और व्हाट इज HA? HA this is equal to VA square upon 2G, that is VA is the velocity of approach upon 2G. So this is your H1, you understand this? So these two are the empirical formula in case of the end contraction wear when I am considering the velocity of approach and when I am not considering the velocity of approach. तो अगर हमारा सुप्रेस्ड वियर होगा, एंड कंट्रैक्शन वो हमारा वियर नहीं है, कौन सा वियर है? सुप्रेस्ड वियर है। तो उस केस में आपका सीधा फार्मूला है व्हेन द कंट्रैक्शंस आर सुप्रेस्ड। इसको लिख लेते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये केस आ गया व्हेन द कंट्रैक्शंस आर नॉट suppressed, राइट। जब आपके नॉट व्हेन द कंट्रैक्शंस आर सुप्रेस्ड, जब कंट्रैक्शन सुप्रेस्ड हो तो उस केस में क्या होगा? Q इज इक्वल टू, सेम चीज है, नॉट Q इज इक्वल टू 1.84 L इंटू H3/3, बिकॉज जब आपके कंट्रैक्शन सुप्रेस्ड होंगे सो इन दिस केस N इज इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होगा? इन केस ऑफ दिस, इन केस ऑफ contractions, in case contractions are suppressed, अगर आपके तो इस केस में n आपका क्या होगा? 0 होगा। और अगर आप n 0 की वैल्यू को पहली इक्वेशंस दी थी उसके बीच में हम पुट करें तो वी विल गेट दिस रिलेशन, राइट। सो यू कैन से दिस इज फॉर द सुप्रेस्ड वियर व्हेन द एंड्स आर सुप्रेस्ड। तो ये सुप्रेस्ड वियर के केस में ये डायरेक्ट फार्मूला ये आपका आ गया, यू अंडरस्टैंड। ये जब कब है? व्हेन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, व्हेन द velocity of approach is not considered। जब velocity of approach हमने कंसिडर नहीं किया था, तो जब velocity of approach हमने कंसिडर किया तो Q is equal to 1.84 L H1 3/2, right? 1.84 L H1 3/2 minus HA 3/2, you understand? तो जब हमने दिस इज इन केस ऑफ दिस velocity of approach BA is considered। जब हमने velocity of approach consider किया था, BA is considered, in this case you will get this relation, you understand this?
तो इसी तरीके से बेजन्स ने भी फार्मूला दिया था, चलो उसको भी लिख लेते हैं हम। Bayesian formula that is also used for measuring the discharge over the rectangular weir. This scientist is also from the France on 86. He also conducted the different type of the experiment on the rectangular weir, and by obtaining the result of that he has given a formula. He has given the formula. तो इसने कौन सा फार्मूला दिया था? Q इज इक्वल टू, इसने डिस्चार्ज का फार्मूला दिया था m रूट 2g l hy3/2. Q इसने दिया था m रूट 2g l h3/2. यू अंडरस्टैंड? जहां पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज नॉट कंसिडर्ड, राइट? तो इसने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस केस में कंसिडर नहीं किया। ये भी आपका फॉर रेक्टेंगुलर वियर है, लिख देते हैं फॉर रेक्टेंगुलर वियर। एक फॉर्मूला इसने दे दिया। अब m की जो वैल्यू थी, ही हैज गिवन द वैल्यू ऑफ m एंड द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू, सो m इज द कोफिशिएंट और इसकी वैल्यू दी थी m इज इक्वल टू 0.405 प्लस 0.003 अपॉन h, राइट? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द m, दिस इज द कोफिशिएंट, he has given the value of m this much. You understand this? तो ये हो गया। और जब वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच हमने कंसीडर किया, जब वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच कंसीडर किया, तो उस वक्त क्यू का जो फार्मूला था, ये अगर 1 हो गया तो उसने दिया था इज इक्वल टू m1 रूट 2g l to h1 3/2, right? h1 3/2. एंड इस केस में जो कोफिशिएंट था m1, दिस इज इक्वल टू 0.405 प्लस 0.003 अपॉन h1, और जैसे आपको पता है h1 दिस इज इक्वल टू h प्लस ha। ये था जब वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच हमने कंसीडर किया था। यू अंडरस्टैंड? हमने जब वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच कंसीडर किया था, तो ha की वैल्यू आपको पता ही है, ha इज इक्वल टू va² अपॉन 2u। तो ये दूसरा फार्मूला था जो उसने दिया था जहां पे। तो ये दिस इज द बेसिन फार्मूला, एंड बट मोस्टली व्हाट वी यूज द फ्रांसिस फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्चार्ज ओवर द रेक्टेंगुलर वियर। तो रेक्टेंगुलर वियर के लिए जो डिस्चार्ज हमें फाइंड आउट करने के लिए जो हम मोस्टली फार्मूला यूज करते हैं, फ्रांसिस फार्मूला यूज करते हैं। बेसिन फार्मूला में मैंने आपको दे दिया, m इज द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट, और उसकी भी जो वैल्यू थी दिस इज गिवन हियर, ठीक है? तो ये आपका वेंटिलेशन के ऊपर था, और उसके ऊपर मैंने कहा था कि अगर हम एनालिटिकली जो फार्मूले हम ड्राइव करते हैं उसमें
तो उसमें हम जो भी वेयर यूज करते हैं या नैप यूज करते हैं, दैट शुड बी ऑन द फ्री नैप. दैट इज द अजम्पशन. जितने भी जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए थे, किए गए थे, by the Francis, by the Weizen, or by the different scientists also, they assume the nap that should be free. Means it is having the atmospheric pressure in the space between the nap and the downstream side of the weir. एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे अगर आपका प्रेशर होगा, डिप्रेस्ड नैप मिलेगी. अगर बिल्कुल आपका एयर नहीं होगा तो क्लिंगिंग नैप मिलेगी. लेकिन उस केस में हम एक्चुअल डिस्चार्ज वेयर नहीं कर सकते. अगर डिप्रेस्ड नैप होगी तो उसका जो डिस्चार्ज होगा वो 6 to 7% हमें उसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू द डिस्चार्ज विच इज बीइंग मेयर्ड बाय द फ्री नैप. और अगर क्लिंगिंग नैप है, इन दैट केस यू विल गेट द 25 to 39% मोर डिस्चार्ज इन दैट केस, राइट. तो ये जो जितने भी फार्मूले एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, उसके बाद ये कंडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड हुए और उसके बाद ये जो फार्मूले दिए गए, these all formulas are based on the free nap condition. You understand? So you can understand that the importance of the ventilation. कि वेंटिलेशंस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ वेयर, हमें एक्चुअल डिस्चार्ज को मेयर करने के लिए. तो ये टॉपिक मुझे लगा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, वन शुड अंडरस्टैंड. इसमें प्रॉपर कंसेप्ट है. तो ये टॉपिक मैंने आपको दिया और आई थिंक आप सभी को इसका समझ आ गया होगा. बेसिकली यू अंडरस्टूड दैट कि वेंटिलेशंस का मतलब क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इसका जो कंप्लीट लेक्चर है और जो इंपीरिकल फार्मूले मैंने आपको इसमें कहा था कि द इंपीरिकल फार्मूलाज विच वी ड्राइव देयर, they are also used by taking the assumption of the ventilation, this assumption of this nap that should be free nap. You understand? तो ये मैंने एक दो जो फ्री आपके फार्मूला था, empirical formula that which we generally used, right, for measuring the discharge, that is the Francis formula, and this is the Weizen formula, but Francis formula हम ज़्यादा यूज करते हैं. तो these are the empirical formula. I think this is enough. Today is the lecture. कल जो है वो इसके नेक्स्ट वाला लेक्चर हम देखेंगे, राइट. जो भी इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो देखेंगे वो कौन सा है. तो दिस इज टुडे इनफ, दैट इज टू मच. थैंक यू वेरी मच.